صحت کے بارے میں جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں ہمیں بریف کریں، اور اس کے بعد جو آج اس میٹنگ میں فیصلے ہوئے ہیں وہ ان کا میں آپ کے سامنے جو ریکمنڈیشن ہوئی ہے، فیصلے تو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی نے کرنے ہیں جن کی صدارت وزیر اعظم صاحب کریں گے، لیکن جو ہماری تجاویز ہے جو اس میٹنگ سے نکلی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان جی۔ شکریہ شفیق صاحب، میں بہت مختصراً وہ تمام چیزیں بیان کر دوں جس کے پس منظر میں آج کی جو گفتگو تھی، کنسلٹیشن تھی، وہ ہوئی، اور اس کا زیادہ تر کا تعلق بیماری کی موجودہ صورتحال، اس کے پھیلاؤ اور آنے والے خطرات کا ذکر تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ جو قومی سطح پہ پازیٹیوٹی کی پرسنٹیج ہے وہ 7% کے قریب گزشتہ 24 گھنٹوں میں دیکھی گئی، اور یہ کئی پچھلے ہفتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی طرح جو کل تعداد پیشنٹس کی ہے وہ بھی 2000 سے اوپر چل رہی ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے اہم یہ کہ ہمیں خیال ہے اور خدشہ ہے کہ اگر اس سٹیج کے اوپر، اس موقع کے اوپر کچھ اہم فیصلے نہ کیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ بیماری کا پھیلاؤ اس حد تک آگے بڑھتا رہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ، ہمارے ہسپتالوں پہ اس کا شدید دباؤ آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ وہ صحت کا وہ پس منظر تھا بیماری کے بارے میں جس کو بیسس بنا کر جو تمام ڈیسیجنز یا ڈسکشن کی گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم موقع ہے اس بیماری کو سلو کرنے کا، روکنے کا، اس کے پھیلاؤ کے اوپر قابو پانے کا۔ تو یہ جب چیز سامنے رکھی گئی تو اس کے بعد پھر تمام دیگر ڈسکشن جو تھا، جو بحث تھی، گفتگو تھی، وہ تمام جو وزیر صحت ہیں، وزیر تعلیم ہیں صوبوں میں، فیڈریٹنگ یونٹس میں، اور شفقت صاحب کی صدارت میں یہ گفتگو ہوئی۔ تو باقی میں اوور ٹو یو شفقت صاحب۔ جی، تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے سارے صوبوں کی جو صحت کی سچویشن تھی اس کو بڑے غور سے دیکھا، اور یہی فیصلہ کیا کہ جو بیماری کا جس طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس سے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کی جا سکے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ 26 نومبر سے، یعنی کہ آج سے 2 دن بعد، پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں، جس میں یونیورسٹیز ہیں، جس میں کالجز ہیں، جس میں سکولز ہیں، جس میں ٹیوشن سینٹرز ہیں، یا اس قسم کے اور جو لرننگ کے ادارے ہیں، ان ساروں میں گھر سے پڑھائی، یعنی کہ وہ بند ہو جائیں گے۔ اسکولوں میں اور ان تعلیمی اداروں میں بچے نہیں آئیں گے، اور وہ گھر سے بیٹھ کے اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں جو ہوم ورک ہے وہ جہاں پہ آن لائن ہے وہاں پہ آن لائن ہوگا، جہاں پہ آن لائن نہیں ہے وہاں پہ اساتذہ جو ہیں وہ ہوم ورک پرسکرائب کریں گے، جو کہ صوبائی حکومتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا ان کے والدین آ کے بچوں کو کا ہوم ورک دکھائیں، لے جائیں، یا جو بھی ہے، لیکن ہر ممکن کوشش کی جائے گی سب حکومتوں کی طرف سے کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے، لیکن بچے جو ہے عمومی طور پہ کوئی کلاس، کوئی سلسلہ، کوئی آرگنائزڈ کلاس جو ہے وہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں وہ نہیں ہوگی۔ اور یہ سلسلہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک گھر سے پڑھائی یا ہوم لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک مکمل سردیوں کی تعطیلات ہوں گی، چھٹیاں ہوں گی، جو کہ 25 دسمبر سے لے کے اس میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالی، آج سے تقریباً 6 ہفتے بعد، جب حالات کوئی بہتر ہو جائیں گے تو اس کے لیے پھر ہم امید کرتے ہیں کہ 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔
लेकिन उससे पहले जनवरी के पहले हफ्ते में एक रिव्यू सेशन होगा जहां ये देखा जाएगा कि इस वक्त बीमारी की सूरत हाल क्या है और उसके मुताबिक फ़ैसला जो है किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 11 जनवरी को स्कूल जो हैं और तालीमी इदारे जितने भी हैं वो दोबारा खुल जाएंगे। उसके अलावा जितने भी इम्तिहानात दिसंबर के पीरियड में होने थे वो हमने मुलतवी कर दिए हैं। वो अब जो 15 जनवरी और उससे ऑनवर्ड जो है इम्तिहानात होंगे, उनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे इम्तिहानात हैं जो कि जारी रहेंगे। उसके बारे में डॉक्टर फैसल प्रोफेशनल एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताएंगे। जी, जैसे शफकत साहब ने फरमाया कि जो इम्तिहान जो असेसमेंट एग्ज़ाम्स हैं वो तो बहरहाल महकमा तालीम जो है उसके बारे में जैसे उन्होंने बताया इंस्ट्रक्शंस इशू करेगी, लेकिन कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जैसे MD कैट वगैरह जो असेसमेंट एग्ज़ाम्स एंट्री के लिए हैं वो अपनी रूटीन के मुताबिक जारी रहेंगे। और उसकी वजह यह है कि उनको मैनेज करना मास्क के साथ, SOPs के साथ, और वो एक दिन का इम्तिहान होता है तो ये ऐन मुमकिन है और सेफ्टी के साथ बिल्कुल तमाम एहतियात के साथ इसको कंडक्ट किया जा सकता है। तो उसकी एक्सेप्शन इस तरह के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो उनकी इजाज़त होगी, जैसे कि पहले भी गुज़िश्ता वेव में भी जब इस तरह के इम्तिहान या इस नौइयत के इम्तिहान आए थे तो उनको इजाज़त दी गई थी। शुक्रिया जी। इसमें मैं एक और इजाफ़ा कर दूं कि जो किसी भी सतह पे अगर कोई रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कोई इम्तिहान हो रहा है, कोई टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, कोई और है, तो वो एग्ज़ाम जो है वो जारी रहेंगे। लेकिन बच्चों के जितने इम्तिहानात दिसंबर में होने थे वो सारे के सारे जो हैं मिड जनवरी जो है उस वक्त तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तो फौरी तौर पे ऑनलाइन लर्निंग जो है वो शुरू कर देंगी और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स जो हैं उनमें 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा तलबा का होगा। बाकी और वो भी वही जो ज़रूरी हैं, कोई बाहर से तालीम के लिए बच्चे आए हुए हैं या ऐसे बच्चे जिनके इलाके में ये मुमकिन नहीं है कि रिमोट ऑनलाइन हो, इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो रह सकते हैं हॉस्टल में। लेकिन सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है तलबा का वो हॉस्टल में रहेगा। उसके अलावा सिर्फ उनको एंट्री इजाज़त होगी जो कि PhD कर रहे हैं या कोई लैब का काम कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ उस सिलसिले में ख़ुद फैसला करेंगी। तो मैं ज़रा दोबारा इसको थोड़ा दोहराता हूँ कि 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक सारे तलबा की जिस भी लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, जिस भी लेवल के हों, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आएंगे और वहाँ पे घर पे तालीम जो है वो जारी रहेगी। और उसके बाद 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक तातीलात छुट्टियाँ होंगी और फिर इंशाअल्लाह 11 जनवरी को सारे अदारे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। जो और एक्सेप्शन है जो हम नहीं बंद कर रहे, जो वो वोकेशनल अदारे, वो हुनर के अदारे जिनमें रेगुलर क्लासरूम सेटिंग नहीं है बल्कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है, फैक्ट्री में ट्रेनिंग हो रही है, बाकी चीज़ों में ट्रेनिंग हो रही है, वो चलते रहेंगे। और डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे सीनियर जी, इसी तरह जो सीनियर मेडिकल ईयर्स की ट्रेनिंग वगैरह होती है वो जारी रहेगी जैसे कि पहले भी थी, जो कि क्लिनिकल एरियाज़ के अंदर होती है और उसमें वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की शुमार में मद में शुमार होती है। ये भी मैं अर्ज़ करूं कि जब तक ये घर से पढ़ाई का सिलसिला जारी है, यानी कि तकरीबन 1 माह 26 नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक, तो ये स्कूल जो हैं ये फ़ैसला करेंगे कि असातिज़ा की ज़रूरत है, उनको असातिज़ा को आना पड़ेगा, वो वहाँ पे स्कूल में होंगे। स्कूल जो हैं वो चलते रहेंगे सिवाय इसके कि वहाँ पे तलबा जो हैं वो नहीं होंगे। उसके अलावा जो चंद फ़ैसले हुए हैं वो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम ये सिफारिश कर रहे हैं कि जो इम्तिहानात बोर्ड के इम्तिहानात मार्च में या अप्रैल में होने थे उनको मई जून में ले जाया जाए, ताकि जब तालीमी इदारे खुलते हैं तो तलबा को
अपना कोर्स वर्क मुकम्मल करने का वक्त मिल जाए। और इसी तरह ये भी तजवीज़ है कि जो नया तालीमी साल है जो कि सरकारी स्कूलों में अप्रैल में होता है वो अगस्त तक ले जाया जाए और गर्मियों की छुट्टियां कम कर दी जाएं कि जाके जो वक्त है या मार्च की छुट्टियां कम की जाएं कि जो तालीम में फ़र्क पड़ा है तो वो उसको कवर किया जा सके। तो ये चंद एक फ़ैसले हैं और हम आवाम को सबको बार बताते रहेंगे कि क्या सूरत हाल है और ये सारा मामला अंडर रिव्यू रहेगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेहरबानी करेंगे और ये बीमारी कम होगी और जनवरी के मिडल में तालीम का सिलसिला जो है वो दोबारा जहाँ से टूटा था वहाँ से शुरू हो जाएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद और मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। उनका कहना था कि NCOC के इजलास में वबा की नौइयत और ख़तरात पर गुफ्तगू हुई है। तमाम सूबों की सेहत का बगौर जायज़ा लिया गया है। कुछ अहम फैसले किए गए हैं जिनमें 26 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक घर से पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद 25 दिसंबर से मौसम सरमा की तातीलात हो जाएंगी जो कि 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। उसके बाद दोबारा से हालात का बगौर जायज़ा लिया जाएगा और तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे।